السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، صدق الله العلي العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سب سے پہلے میں مدرسہ کے معلم ہونے کی حیثیت سے اپنے تمام مہمانان مکرم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مسلم پرسنل اللہ کی آواز پر لبیک کہا ہے۔ یقیناً آپ نے کتاب الہی کی حفاظت کی آواز پر لبیک کہا ہے۔ یقیناً آپ نے شریعت محمدی کی حفاظت کے لیے لبیک کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بندہ دست بدعا ہے کہ پروردگار عالم اس بیٹھنے کو قبول فرمائیں۔ اور رب کریم، آپ تو حاکموں کے حاکم ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، یہ آپ کا کلام ہے، آپ نے قرآن کریم کے اندر نازل فرما دیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو رب کریم، اے میرے ربا، آپ اس کی حفاظت فرما لیجئے۔ حضرت گرامی، 20% عورتیں مسلم طلاقوں کے شکار، 20% عورتیں مسلم طلاقوں کی شکار، درد میں جن کے چڑھا اہل حکومت کو بخار، درد میں جن کے چڑھا اہل حکومت کو بخار، اور بھی مظلوم کچھ بہنیں حاکم بھائیوں، اور بھی مظلوم کچھ بہنیں حاکم بھائیوں، 80% پر نہیں کیوں آپ آخر اشک بار۔ بہرحال دوستوں، ہمیں اور آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ آج اس قدر زور و شور سے اس ہندوستان کی دھرتی پر مسلم پرسنل لا بیداری مہم کا یہ پروگرام کیوں چلایا جا رہا ہے؟ آخر اس کی آج ضرورت کیوں پڑ گئی اتنی شدت کے ساتھ؟ تو مسلمانوں، میں کہوں گا، میری آواز ہے، میرے دل کی یہ آواز ہے کہ یقیناً ہماری کوتاہیوں نے، اسلام سے غفلت نے، قرآن کریم سے غفلت نے ہمیں اس درجہ پر پہنچا دیا ہے کہ ہم اور آپ اس کام کے کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ حضرت گرامی، مسلم پرسنل لا بیداری مہم کے تحت آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ آج مسلم پرسنل لا کے اوپر آج کی حکومت ڈائریکٹ اور آمنے سامنے سے نہیں بلکہ چور دروازے سے آ کر کے اور اس پرسنل لا کے اوپر وہ حملہ کرنا چاہتی ہے حکومت۔ اور بلکہ میں یہ کہتا چلوں مسلمانوں کہ آپ کے پرسنل لا کے اوپر حملہ ہو چکا ہے، اگرچہ آمنے سامنے سے نہیں ہوا ہے لیکن چور دروازے سے آپ کے سینے پر ہاتھ رکھا جا چکا ہے۔ یقیناً آپ میں سے بیشتر کو پتہ ہوگا، معلوم ہوگا کہ اس ہندوستان کے اندر یہ شرط لگائی جا چکی ہے، یہ حکم نافذ ہو چکا ہوا ہے کہ سرکاری عہدے داران آدمی دوسری شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یقیناً ہمارے وہ مسلم بھائی، وہ کلمہ گو بھائی جو سرکاری عہدے پر ہیں، وہ دوسری شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا ہے اگر طاقت ہے، صلاحیت ہے، حیثیت ہے، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے آپ 4 بیویوں کے حقوق ادا کر سکتے ہیں تو 4 بیوی کر سکتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو یہ بات دھیان رکھنا پڑے گا اور ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا کہ 4 بیوی شادی کرنے کو صرف کہا نہیں گیا ہے بلکہ ہمیں اور آپ کو اس کے حقوق بھی ادا کرنے پڑیں گے۔ آپ کو میں ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت مولانا شیخ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ آپ کے پاس 2 بیویاں تھیں۔
आपके पास किसी साहब ने तरबूज ला करके पेश किया था, 2 तरबूज लाए थे। आप आने वाले जो शख्स थे, जो तरबूज हदिया में पेश करने वाले शख्स थे, उसके सामने में एक तरबूज को आधा आधा करते हैं, फिर दूसरी तरबूज को आधा आधा करने लगते हैं। वो साइड आने वाला आदमी पूछता है, क्या हजरत, आप तो यूं भी कर सकते थे कि तरबूज का एक हिस्सा, एक तरबूज एक बीवी को दे दें और दूसरा तरबूज दूसरी बीवी को दे दें, ऐसा भी कर सकते थे। हजरत शेख अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्रों को नूर से मनव्वर फरमाए, कि ये तरबूज है, हमें क्या मालूम और आपको क्या मालूम कि ये मीठा है या फीका है, ये मीठा है या ये फीका है। इसलिए मैंने दोनों को 2-2 काश बनाए हैं, 2-2 हिस्से बनाए हैं। एक तरबूज का एक हिस्सा एक बीवी को, दूसरा हिस्सा दूसरी बीवी को, और दूसरी तरबूज का एक हिस्सा एक बीवी को और दूसरा हिस्सा दूसरी बीवी को दिया जाएगा। कि अगर एक तरबूज मीठा नहीं होगा तो उसका भी मजा दोनों चख लेगी, और अगर एक तरबूज मीठा होगा तो उसका भी मजा दोनों चख लेगी। इस शर्त के साथ, इस बराबरी के साथ, इस मसावात के साथ कुरान करीम ने और अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि आप 4 शादियां कर सकते हैं इस्तिताअत के बाद, सलाहियत के बाद, जबकि आप माली एतबार से भी सलाहियत रखते हैं और जिस्मानी एतबार से भी सलाहियत रखते हैं तो कर सकते हैं। इस्लाम के कहने का मतलब नौजुबिल्लाह ये नहीं है कि आप शादी कर लें, उसकी देख रेख न करें, आप शादी कर लें, उसकी आप हिफाजत न करें, उसका आप ख्याल न रखें, ये मतलब नहीं है। ये नाबराबरी हमारे माशरे में होती है। हम शादियां तो कर लेते हैं लेकिन उनके हुकूक अदा नहीं कर पाते हैं। एक को छोड़ देते हैं, एक को मायके छोड़ देते हैं, एक को अलग कमरे दे करके छोड़ देते हैं। ये एतराज़ात है जो हुकूमत को हमारे ऊपर करने का हक हो गया और हमने ये मौका दिया है। इसलिए मुसलमानों, हमें और आपको चाहिए कि ये इस जलसा से, कॉन्फ्रेंस से, मिलाद से, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। माशरा अफराद से बनता है, माशरा हमसे बनता है, माशरा आपसे बनता है। हम अपनी जिंदगी के अंदर दीनदारी पैदा कर ले, हम अपनी जिंदगी को मुस्लिम पर्सनल्लाह के मुताबिक बना ले, अपने माशरा को मुस्लिम पर्सनल्लाह के मुताबिक बना ले, अपने गांव समाज के साथियों को मुस्लिम पर्सनल्लाह के मुताबिक बना ले, फिर आज हमारी जिंदगी में कुरान करीम उतर जाएगा, शरीयत मुहम्मदी हमारी जिंदगी में रस बस जाएगी। उसके बाद किसी जालिम को यह हक नहीं होगा कि हम इसके ऊपर एतराज कर लें। चूंकि जब हमारी जिंदगी 100% कुरान के मुताबिक मुसलमान हो जाएगी, हमारी जिंदगी 100% मुसलमानी जिंदगी हो जाएगी, तो हमारे सीने के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह तबारक व तआला एक रौब दे देगा। उस रौब की वजह से गैरों को बोलने की जुर्रत और जसारत नहीं होगी। तो जरूरत इस बात की है कि हम और आप अपनी निजी जिंदगी में, खानदानी जिंदगी में और अपने साथियों की जिंदगी में, अपने साथियों के बैठक में, रास्ते चलते हुए, बाजारों में, सड़कों में इस्लाम को जिंदा करे, पुरानी अहकाम को जिंदा करे। नए के सिर्फ मस्जिद में है तो अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, जब आप मस्जिद से बाहर भी आते हैं तो अल्लाह अल्लाह कीजिए। इस तरीके से आपका दीन जिंदा रहेगा, गैरों की हिम्मत और मजाल नहीं होगा कि आपके ऊपर एतराज करे। बहरहाल, आज कुरान का एक अहम हुक्म तलाक का बहाना बनाकर के आज ये हुकूमत हमारे पर्सनल्लाह पर हमला करना चाहती है। आखिर इस तलाक के अंदर उसको क्या बुराई समझ में आई? तो हुकूमत की तरफ से 4 एतराज़ात तकरीबन होते हैं। मैं उन एतराज़ात को पेश करके, उनके जवाबात को पेश करके अपनी जगह लेता हूं। शायद मेरा वक्त भी खत्म होने वाला है। कुरान करीम ने कहा है कि अगर आपकी जिंदगी, इज़्दिवाजी जिंदगी खुश खुर्रम नहीं गुजर रही है, आपकी जिंदगी जहन्नम कदम बनती चली जा रही है, इज़्दिवाजी जिंदगी, मियां बीवी में अनबन होता रहता है और जिंदगी बड़ी मुश्किल हो गई है, तो अब कुरान करीम ने पहले ये नहीं कहा कि आप तलाक ही ठोक दो, तलाक 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 कर दो। कुरान करीम हरगिज ये नहीं कहा। कुरान करीम ने कहा है कि सबसे पहले आप उनको हिकमत अमली से समझाइए, प्यारी बातें कह करके समझाइए। अगर इससे भी आपकी रफीक हयात नहीं समझती है तो आप उनके बिस्तर को अलग कर दीजिए। बिस्तर अलग करने के बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा है, या तो यह है कि तकिया की तरफ रुख घुमा लिया जाए, या यह है कि बिस्तर बिल्कुल ही अलग कर लिया जाए। इससे भी अगर नहीं समझ में बात आ रही है तो कुरान करीम ने कहा कि हल्की मार मारा जाए, हल्की मार मारा जाए। मार का ये मतलब नहीं कि बिल्कुल उस पर ज़र्ब इतना किया जाए, इतना किया जाए वो बेचारी परेशान और हैरान हो जाए।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वज़रिबुहुन्ना वज़रिबु वुजुहम, कि उनके चेहरे पर मारो और ऐसी हल्की मार मारो कि कहीं पर दाग और निशानी न आए। आज हमारे माशरे में इसमें बड़ी कोताही पाई जाती है, जहां रफीक हयात से जिनके साथ अब सब कुछ आयश खुशी की बातें करते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, अगर उनसे कुछ अनबन हो जाती है तो आप उनको इंसान नहीं हैवान और जानवर समझ करके धड़ल्ले से मारना शुरू कर देते हैं। आपकी ये हरकत यकीनन अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं आती। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत नहीं देते और हमारी और आपकी इसी गलत हरकत की वजह से आज गैरों को एतराज करने का हक हो गया है। लिहाजा अगर अनबन हो जाती है तो आप चाहिए कि हिकमत अमली से उनको समझाए। अगर ये हिकमत अमली भी फेल हो जाती है, अगर इस हिकमत अमली से भी जिंदगी पैटरी पर नहीं आ पाती है, तो कुरान करीम ने कहा कि अपनी बीवी को एक तलाक दे दो, वो भी उस जमाने में जबकि तुम अपनी बीवी से मिले नहीं हो और वो नापाकी की हालत में नहीं है, उस वक्त उनको तलाक दे दो। आप कुरान करीम ने कहा है अब लौटा सकते हो। अगर देख रहे हो कि हमारी बीवी अब राह रास्त पर आ रही है, जिंदगी पैटरी पर आ रही है, तो अब तुम उसको लौटा सकते हो। बिल्कुल खुल के भी कह सकते हो कि मैं तुमको अपने निकाह में रख लेता हूं। जो भी तरीका है उसको अपनाया जा सकता है। उसके बाद कुरान करीम कहता है कि अगर इस पर भी नहीं बात समझ रही है, अगर इस पर भी मामला नहीं सोच रहा है, तो दूसरी तलाक दे सकते हो। दूसरी तलाक के बाद अब वो औरत जुदा हो जाएगी। 3 तलाक देने की इजाजत नहीं है। लेकिन अगर कोई अहमक नादान बेवकूफ अपनी नादानी का मुजाहरा करता है, अपनी हिमाकत का मुजाहरा करता है कि अपनी बीवी को तीसरी तलाक भी दे देता है, तो कुरान करीम ने कहा है कि अब वो औरत पहले शौहर के लिए हलाल और जायज नहीं है, हत्ता कि दूसरी शादी कर ले। दूसरी शादी का मतलब वो नहीं जो आज माशरे में है, रुपए देते हैं, पैसे देते हैं, उनको सलाह मशवरा देते हैं कि मैं फला मुतल्लका औरत है, उससे आपको शादी किए देता हूँ, रात भर शबाशी कर लेंगे तो सवेरे को आप तलाक दे दीजिएगा, ये पैसे आपको हदिया मिल जाएंगे। हरगिज नहीं। कुरान करीम अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है लअनल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लिल लह, कि ऐसे लोगों पर जो मशवरे के साथ मीटिंग के साथ हलाला करता है, तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये हलाला कराने वाले पर भी, हलाला करने वाला भी अल्लाह तबारक व तआला की लानत नाजिल होती है। तो बहरहाल हलाला का मतलब वो नहीं है जो हम और आप समझ रहे हैं। हलाला का मतलब ये है कि दूसरी शादी हो जाए, जिस तरीके से अब पहले शौहर के यहाँ पर उसको अनबन और आता बातें नहीं बन रही थी, अब दूसरे शौहर के साथ भी वही हो रहा है। बस वो इरादा नहीं था कि इसको छोड़ दूंगा, इसको तलाक दे दूंगा, लेकिन दूसरी शादी दूसरे शौहर के साथ भी यही मामला हो रहा है। अब वो शौहर भी आजिज आकर के तलाक दे देता है, तो अब ये औरत पहले शौहर के लिए हलाल हो जाती है, अब कर सकते हैं। तो हमें और आपको, हमारे और आपके लिए जरूरत इस बात की है, हमारी जिम्मेदारी ये है कि जिस हलाला के बारे में आका इनामदार ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाला करने वाले और कराने वाले दोनों पर लानत है, उस हलाला से बचें। और जो हलाला आका मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, वो हलाला को अपनाएं। हुकूमत वक्त मेरा हो चुका है, लेकिन अदब के साथ मैं गुजारिश करता हूँ कि 5 मिनट मुझे और दे दिया जाए। हुकूमत आज एतराज करती है कि 3 तलाक का सबूत कुरान करीम से नहीं है। यह हुकूमत की हिमाकत है, यह हुकूमत की हिमाकत और बेवकूफ़ी है। उन्हें क्या पता, उन्हें क्या पता, वो तो जानते ही नहीं कि मजहब इस्लाम कैसा अमन शांति का, रहमत और मवद्दत का, शफकत का मजहब धर्म है। इन हमकों को क्या पता। कुरान करीम ने कहा है तलाक़ मरतान के असल तलाक 2 तलाक है, जिसके बाद बीवी को आप लौटा सकते हैं, लेकिन हिमाकत की वजह से 3 तलाक दे दिए तो आप ये तलाक वाक़ई हो जाएगी। तीसरी तलाक का सबूत कुरान करीम में है। उसके बाद हुकूमत का एतराज है कि मुस्लिम उलमा कहते हैं कि यह तलाक देना एक मकरूह और नापसंदीदा चीज है। जब नापसंदीदा और मकरूह चीज है, नापसंदीदा और मकरूह चीज है,
तो भला ये कैसे कहते हैं कि अगर दे दिया तो वाक़ हो जाए? मैं से पूछना चाहूंगा कि आपके इस मुल्क के अंदर आए दिन जेवरों के दुकान में, कपड़ों के दुकान में शूट होता है, गोलियां लगती हैं, और पेपर में आता है कि मौके पर ही उस आदमी की मौत हो गई है, मौके पर ही उस आदमी की मौत हो गई है, आग में किसी को जला दिया गया है, वो आदमी जल गया है। यकीनन ये पेपर की खबरें हैं। हमारी अकल, आपकी अकल, तमाम इंसानों की अकल यही कहती है जब गोली लग गई तो आदमी मर गया, जब उस आदमी को आग में डाल दिया गया तो आदमी जल गया। भला मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप इसको क्या कहेंगे? गोली लग गई, वो आदमी तड़प रहा है, मर गया, तो आप क्या कहेंगे? वो आदमी मरा नहीं है। नजासत के माने बहुतों को पता नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी सी अदब के साथ आपसे गुजारिश करता हूं कि लेटरिन समझ लीजिए। लेटरिन खाना नाजायज और हराम है, बिल्कुल नफीस आदमी हरगिज़ पसंद नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई आदमी खा ले तो आप क्या कहेंगे? नहीं खाया है, यकीनन कहेंगे खा लिया। तो उसी तरीके से अगर कोई आदमी तलाक दे देता है, तीसरी तलाक, तो तलाक वाक़ई हो जाएगी। और तीसरा एतराज ये है कि मुस्लिम ममालिक में इस पर पाबंदी लगा दी गई है। उलमाओं को यह पता नहीं है कि तलाक के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई गई है, पाबंदी इस अमर पर लगाई है कि 3 तलाक देना कुरान के रूह से गलत है, ऐसा नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर दे दिया तो तलाक वाक़ई हो जाएगी। अब मुस्लिम ममालिक ने कहा चूंकि कुरान के हुक्म के खिलाफ है, लिहाजा अगर कोई तलाक दे देता है तो वो मुजरिम है, इस जुर्म की सजा उसको मिलती है। नए के तीसरी तलाक को बंद कर दिया गया है और उस पर पाबंदी लगा दी गई है। और चौथा एतराज ये है कि मुस्लिम औरतों को तलाक की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस दर्द की वजह से हम कहते हैं कि इस तलाक पर पाबंदी हो जानी चाहिए। मैं हुक्मरान तबके से कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, मेरे वतन के भाइयों, यकीनन हमारी बहन के लिए, हमारी बहू के लिए, हमारी माँ के लिए आपके सीने में दर्द है, हम इसको सलाम करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं पूछता हूं कि मुजफ्फरनगर में हमारी बहनों को मारा गया, उनकी इज्जत लूटी गई। गुजरात में हमारी बहनों को मारा गया, उनकी इज्जत लूटी गई। हमारे हमल शुदा औरतों को पेट को चाक करके 9 महीने, 6 महीने, 7 महीने के बच्चों को त्रिशूल पे नचाया गया। सबसे पहले आप उनको हक दीजिए, उसके बाद आप इसका फैसला कीजिएगा और इस दर्द को जताइएगा। आखिर में दोस्तों मैं आपसे एतराज करता हूं और आप ना आए। मैं बहैसियत मदरस, इस मदरसे के जिम्मेदार होने की हैसियत से आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार। जो हजरात यहाँ तशरीफ रखते हैं उनको मुस्लिम पर्सनल लॉ समझाया गया है, और सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं समझाया गया बल्कि आगे बेदारी मुहिम भी आपके सामने रखा गया। सबसे अव्वल मुकर्रिर जो हमारे दरमियान तशरीफ लाए और चले गए, वो दुनिया से ना जाए, अल्लाह उनकी उम्र को तवील फरमाए, अल्लाह उनका साया देर तक रखे। वो हजरत मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब की दामत बरकातुहुम थे, जो अपना इस्तकबालिया कलाम पेश कर रहे थे और इब्तिदाई गुफ्तगू से हम तमाम लोगों को सरफराज फरमा रहे थे। हम सब के सरपरस्त हैं। दूसरे मुकर्रिर जो हमारे तशरीफ लाए हजरत मौलाना रिजवान साहब किबला, जो बरदाहा से तशरीफ लाए हैं और वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद हजरत मौलाना अफजल हुसैन साहब अल-कासमी भी तशरीफ लाए, और जनाब महबूब और हर दिल अजीज, लोगों के दिल में घुस करके हुकूमत करने वाली शख्सियत जनाब भाई हसन बदर भी तशरीफ लाए, और उनको जो कहना था वो कह के चले गए। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये कोई तमाशा नहीं है, ये कोई मेला नहीं है, ये कोई चूड़ी और आयरन की बाजार नहीं लगाएगी। औरतें जहां भी मौजूद हैं उनको समझा देने की जरूरत है, उनको बतला देने की जरूरत है, आपको समझ करके जाने की जरूरत है। क्यों? इसलिए कि आप इस्लाम सीखने आए हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ को जानने के लिए आए हैं, और आप पर कुछ जिम्मेदारी आयद की गई है। किसी जमाने में एक छोटा सा लड़का हमको कहता है, जो वर्कशॉप चलाता है, वर्कशॉप, हम लोगों को तो वर्कशॉप मालूम नहीं है कि ये होता क्या है,
वो हदिया में मोबाइलो आया इतना बड़ा, तो हमारा लड़का एक तो अबू तलहा है, तो वो कहता है अब्बा को क्या कीजिएगा। हम कहा कि समझ के लिए तोरी नियत, तुम समझता क्या है, हम इस लायक भी नहीं है कि इसको लेकर के घूम सके। कहा अब्बा आपको लोग क्या कहेगा कि आप इतना बड़ा मोबाइल लेकर के चलते हैं, आप मौलाना ना है, आप मजलिस में ना जाते हैं, आप इधर उधर ना बैठ करके गुफ्तगू करते हैं, आपको ये मोबाइल मुनासिब नहीं है आपका रखना, लिहाजा आप इसके बारे में कुछ बतलाइए। बड़ा बेबाक लड़का है, वो छोटा है, थोड़ा सा लंबा हो गया है, एक के ठू है। तो मैंने कहा कि ठीक है, तेरे जो मन में है वही, लिहाजा वो रखा और रख करके जो है उसको पेड़ पार करके चंद ही दिन में उसको तोड़ डाल दिया। हमने कहा रे ये हदिया का माल न था, तुम इतनी बेदर्दी से इसका इस्तेमाल किया कि न जाने इसका जनाजा भी पढ़ाने वाला कोई मौजूद नहीं है। इतने टुकड़े टुकड़े कर दिया कि उसकी शनाख्त मुश्किल हो गई कि इसको क्या कहा जाए, मुस्लिम कहा जाए या गैर मुस्लिम कहा जाए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? समझ के जाइएगा। जरूरत इस बात की है कि हर आदमी मुस्लिम पर्सनल लॉ को जाने। ये उलमा जो रहबरान इस्लाम है, जिनके ऊपर इस्लाम का बेड़ा और इस्लाम की जिम्मेदारी लादी गई है, ये आपको वक्तन फवक्तन बुलाते हैं और आपसे कहते हैं कि आप समझो, लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले कह दिया है कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिम व मुस्लिमा। इसको कौन समझेगा? तो एक छोटा सा लड़का आया, उसने हमसे कहा कि वर्कशॉप में मौलाना कुछ लड़कियों का, कुछ औरतों का बुर्का पोश का स्टेटमेंट आया है, आप उसको देखना चाहते हैं? हम कहा कि इस्लाम के मुआफिक है कि मुखालिफ है, पहले सुनना बताओ। तो कहा नहीं, वो इस्लाम के खिलाफ स्टेटमेंट दे रही थी, वो इस्लाम के खिलाफ बोल रही थी और मीडिया के सामने वो बुर्का पोशी की हालत में बेबाकी के साथ गुफ्तगू कर रही थी और वो तलाक के खिलाफ गुफ्तगू कर रही थी। मैंने कहा याद रखना, मैं सबसे पहले ये तुमसे बता दूं कि अगर वो तलाक के खिलाफ बात कर रही थी तो वो पर्दा पोश नहीं थी, वो बुर्के में नहीं थी, वो अय्याश थी, वो कहीं से आई हुई थी, वो किराए की औरत थी, वो यहूदी थी, वो नसरानी थी, वो कादियानी थी, वो मुसलमान की बुर्दा पोश औरत नहीं थी। ये हमारा ईमान है, तो ईमान यही होना चाहिए। इतनी बिगड़ी हुई ये नहीं है। जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया होगा, जिसने मोहम्मद को किसी न किसी दर्जे में जान लिया होगा और ये समझ लिया होगा कि हमारा कोई पालनहार है, परवरदिगार आलम है और उसी का कानून है कुरान करीम और हम इसको मानते हैं और यही है मेरा मुस्लिम पर्सनल लॉ, तो वो मुसलमान औरत ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकती। मुसलमानों, इस प्रोग्राम से जो चंद लम्हा यहाँ पर बैठ करके चले जाएंगे और न जाने खित्ते में कहाँ कहाँ प्रोग्राम हो रहा है, आज भी कहीं ना कहीं प्रोग्राम इसके अलावा चल रहा होगा और एक जगह नहीं, पता नहीं हिंदुस्तान लेवल पे अगर गिनती किया जाए तो हजारों जगह प्रोग्राम चल रहा है। मैं कहीं कहीं अपने खुतबे में कहा करता हूं कि पूरी दुनिया आज जलसागा बनी हुई है, लेकिन मुसलमानों की गैरत बेदार नहीं है, मुसलमानों का इल्म नहीं लग रहा है, इनके अंदर जो बीमारी आनी चाहिए वो नहीं है। वरना यही मुसलमान है जो किसी जमाने में कहा करता था कि सरफरोशी की तमन्ना आपको मेरे दिल में है ना है। अब देखना है कितनी ताकत बाजुए कातिल में है। ये जो आया है चिल्लाने के लिए, ये मिटाने आया है, ये कुरान को लेके भागने के लिए आया है, इसकी ताकत है। किसी जमाने में एक खतीब ने कहा था कि तुम अहकमुल हाकिमीन के कोर्ट का फैसला दुनिया में खंगालना चाहते हो और तुम्हारी यही मंशा है, तुम्हारी यही राय है, तो आओ और सीने से सीने का मिलाओ, तो कम से कम आंख से आंख मिला करके मुझसे बात करो और कहो कि हम तुम्हारे कुरान के खिलाफ साजिश करते हैं, हम तुम्हारे कुरान को मिटाना चाहते हैं। ऐ लोगों, ऐसा नहीं होने वाला है। मुस्लिम पर्सनल लॉ जिसका नाम कुरान है वो मिटने नहीं आया है। और उसने कहा था, हम नाम जाहिर नहीं करेंगे, या हजरत जनाब भाई हाफिज हसन बदर भी तशरीफ रखते हैं और जनाब मास्टर नजीर अहमद साहब भी तशरीफ रखते हैं, हजरत मौलाना रिजवान साहब भी रखते हैं
और रूह रवा सर्वे सर्वा जनाब भाई मौलाना मोहम्मद अली साहब भी तशरीफ रखते हैं इन लोगों के सामने। छुप छुपा के गुफ्तगू करने में ही खैर है। तो उन्होंने कहा था कि तुम आओ और मैं अपने कुरान को लाता हूं, तुम अपने रवायत और पेट को ले आओ। मामूली बात है, चैलेंज दे सकते हो, ठोस है, मामला अंदर से एकदम मुस्तहकम है और आप मुसलमान होने की हैसियत से जगे हुए हैं, तो यही बोली आपकी होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि कुरान मैं लाता हूँ और तुम रवायत में को ले आओ, और तुम भी दरिया में डाल दो और मैं भी दरिया में डालता हूँ इस कुरान करीम को 100 साल के बाद। लोगों मिटाने की बात करते हो, लोगों हटाने की बात करते हो। मुद्दा सिर्फ तलाक नहीं है, मुद्दा यह है कि मदारिस को हटाया जाए, मुद्दा यह है कि मुसलमानों के नामो निशान को मिटाया जाए, मुद्दा यह है कि इनके तेवर को खराब किया जाए, इनके घर से सुन्नत निकाल दिया जाए, इनके फराइज को डैमेज कर दिया जाए और इनके रहने सहने का जो निजाम है उसको अपने जैसा निजाम बना दिया जाए। ऐसा नहीं होने वाला है। अब 100 साल के बाद आओ, कहो कि रामायण इधर आओ, कोई रामायण मनाने वाला नहीं है। कोई है बाप का बेटा जो बोला है, और हम लोगों को भी राती दुनिया तक बोलना है। फैसला रखते हैं बोलने का, कहिए इंशाअल्लाह। 100 साल के बाद आओ और कहो कि रामायण इधर आओ, तुम्हारा कोई रामायण आने वाला नहीं है। और मैं कहूंगा कि आप मेरा कुरान में आ जाओ तो मेरा कुरान चलाएगा। ए लोगों, तुम कागज के कुरान को मिटाने के दम पे हो। तुम्हारा नाम लगना जिस दिन फर्ज होगा, इंसान करता है, मैं उसको अपनी जूती के नोक से ठुकाने की कोशिश करूंगा। और मेरे अंदर वो दम है, इसलिए कि मैं मिटने नहीं आया हूँ, मिटाने आया हूँ। मेरा कुरान आ जाएगा और मैं उस कुरान को फिर सीधे से लगा लूंगा। तुम कागज के कुरान को मिटा सकते हो, क्या मेरे उन कुरानों को भी मिटा सकते हो जो लाखों सीने में मौजूद है? कहिए सुभान अल्लाह। मुस्लिम पर्सनल लॉ। अरे अफसोस कि आज मुसलमानों के दरमियान हमको मुस्लिम पर्सनल लॉ बताना पड़ रहा है। कुरान ने कहा था रिजाल कव्वामून अलल निसा, सारे के सारे मर्द गवर्नर हैं। किसके गवर्नर है वो? किसके? हिंदुस्तान के, सूबा बिहार के या यूपी के या राजस्थान के? ये गवर्नर है मुसलमान मर्द औरत के। ये जितना मुसलमान मर्द बैठा हुआ है, इन मुसलमान मर्दों को अपनी औरतों को समझना होगा कि नहीं समझना होगा? समझाइए हमको पहले आप। हजरत मौलाना रिजवान साहब या शायद जनाब भाई हसन बदर कह रहे थे कि इजाब व कबूल का करिश्मा देखिए कि न जाने कहाँ की लड़की और कहाँ का लड़का, दोनों में ऐसा मेल कि सुपर फास्ट भी फेल है और राजधानी और गरीब रथ की भी अपनी तेजी नहीं है जितनी तेजी अजनबिया लड़की और अजनबी लड़का दिखलाना है। क्यों? इजाबो कबूल का मंदिर है, उसका नक्शा है। और उस सिलसिले से आप गुफ्तगू करने के लिए यहाँ बैठे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ को बेदार नहीं किया जा सकता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बना हुआ है। हम इनको समझाने के लिए पैदा हुए हैं। हमने कहा हर आदमी समझेगा तब ना समझावेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इल्म का सीखना हर मर्द मुसलमान औरत पे फर्ज है, तो आप सीखिए ना। लॉ सीखना कोई मामूली बात है? वो लॉ के माने कानून, लॉ माने एक लॉ पढ़ने वाला कई साल पढ़ता है तो लॉ करता है और अपना कोट दिखलाता है और अपना कलम दिखलाता है तो कहता है कि ये एडवोकेट है, ये वकील साहब है, ये बहस करते हैं और अदालत में जज के सामने बहस करते हैं, ये लॉ से बहस करते हैं। मुसलमानों, हमने कहा फर्ज इस लायक हो जाए कि अपने कुरान का दुनिया वालों के सामने मंजर पेश कर सके। हम आपको ये पैगाम देना चाहते हैं। मेरा अंदाज ये है, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी हैसियत समझ करके चलने की कोशिश कीजिए। क्यों? इसलिए कि आप कोई मामूली चीज नहीं है। लात वही मारा जाता है जिसमें दमदारी होती है। सीट उसी पर कब्जा, उसी सीट पे कब्जा किया जाता है जिस सीट में कोई दम होता है नहीं? गोबर में कोई लात नहीं मारता, इसलिए कि गोबर में लात मारेगा तो पाँव अपना ही गंदा हो जाएगा। गोबर का कुछ बिगड़ने बनने वाला। आपके अंदर जान है, आपके अंदर माल है और आपके अंदर खूबसूरत शय है।
ये अहकमुल हाकिमीन का फैसला है। ये दुनिया के किसी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में नहीं हो सकता है। लोगों इस बात का आज़म रखो कि हम में का हर फर्द इस बात को करेगा और अपना इस्लाम दूसरों को बताएगा। इस्लाम जीने के लिए, रहने के लिए आया है। जब तक दुनिया रहेगी इस्लाम रहेगा। मैं फख्र के साथ कहता हूं कि इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है और हमारे ऊपर किसी दर्जे में जो जिम्मेदारी आई है वो ये आई है कि तुम इसको समझो और अपने खानवादा को, अपने कबीला को, अपने मातहतों को, अपने दस्ते जिगर को और अपने मातहतों को समझाओ, इसलिए कि ये कुरान हकीमी है और ये आफाकी है। इसका फैसला जमीन पर नहीं हो सकता है। और दूसरी बात ये है, इत्तेहाद बहुत जरूरी है। किसी जमाने में हजरत मौलाना वली रहमानी साहब ने एक बड़ा इजलास बुलाया था रहमानी मुंगेर में, जहां शाह मिन्नतुल्लाह रहमानी मौजूद हैं। आज वहां हजरत मदफून है और वो जगह बना है कि हजरत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी, जिन्होंने हुकूमत से ऐसी गुफ्तगू की है और ऐसा नक्शा इस्लाम को पेश किया है कि कोई ऐसा माँ का लाल पैदा नहीं हुआ जो ऐसी शख्सियतों से आंख मिला कर बात कर सके। लोगों हम इतने हल्के हो गए, लोगों हम इतने बहरे हो गए, लोगों हमारा मकाम यही रह गया कि इधर से सीताराम, इधर से लक्ष्मण, इधर से राम, जो आए बोल के चला जाए और हम खामोशी से उसको सुने और समझ के शायद हो जाए। मेरे लोगों, हजरत ने एक इजलास बुलाया था, उसमें हर मकतबे फिक्र के लोग तशरीफ लाए थे। तो एक साहब आए थे, उनका नाम था कल्बे जवाद। एक बात कहना चाहते हैं आपसे, वो लखनऊ के रहने वाले हैं, शिया के लीडर हैं। उन्होंने कहा था, मुसलमानों सुनो, तुम कहाँ के लिए आए हो? अरे लड़ने के लिए आए हो कि सोने के लिए आए हो? तुम्हारा क्या मामला है? क्यों मौलाना वली रहमानी ने तुमको बुलाया है? इसका मकसद समझते हो? कहा कि हुजूर समझा दीजिए। कहा कि कैंची समझते हो? कैंची जानते हो? कैंची, कैंची देखा? आप तमाम लोग कैंची जानते हैं कि नहीं जानते हैं? क्या सुनिए ना, कहीं ना जानते हैं? देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? कैंची का काम कुंजी अल्लाह तो कहा ना, कैंची का मतलब समझता है। तो लोगों ने कहा, जी हजरत समझते तो है कि कैंची होती है। तो कहा मतलब यही हुआ कि कैंची होती है। हजरत ने कहा कि कैंची का काम बताओ। हजरत ने पूछा कि कैंची का काम बताओ, तो सब लोगों ने कहा कैंची का काम है काटना। तो कहा कि तुम काटने वाले बन जाओ। अल्लाह अकबर। मेरे लोगों, आप काटने के लिए आए हैं, आप कटवाने के लिए नहीं आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निज़ाम। मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निज़ाम। मुंतशिर हो तो शोर मचाते क्यों हो? मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो? मैंने आपसे ये कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ आपका निजी मामला है और ये आपका जाती मामला है। अगर इसको कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। बड़ी संजीदगी से, बहुत खामोशी से, बहुत अदब और एहतराम के साथ उनका जवाब देना है। इसलिए कि ये मजहब उछलने वाला मजहब नहीं है, ये तो बहुत ही गंभीर और संजीदा मजहब है, जिसकी पैरवी मोहम्मद अली ने किया, जिसकी पैरवी मोहम्मद यूसुफ ने किया। और जिनको ये कहा जाए कि इनको मानने वाले वो लोग पैदा हुए जो उस जमाने के उनके सिपा सालार थे और मेरे शहदाई हो गए। लोगों, उस जगह पे चल के देखिए जो हमारी पिछली रिवायतें हैं, हमें किस तरह की दावत देती हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला हम तमाम लोगों को देखिए, खुतबे में वक्त खत्म हो जाता है, तमीज़िए बात में तो क्या होगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कहने की बात यह है कि आप तमामी हजरात काबिल एहतराम है, लायक के साथ एहतराम है कि आप तशरीफ लाए हैं और अपने मजहब को समझने के लिए आए हैं। अपने घर में भी समझने की जरूरत महसूस कीजिए। नहीं है कि यहाँ सुन लिया और घर में जाकर के सब ऐसी घूमेगी फिरेगी, इस पर कोई निगरान नहीं है। इनका वही मोबाइल है, उनका यही स्टाइल है और यही है जो इस्लाम के लिए खतरा बना हुआ है। अगर इस्लाम को खतरे से बचाना है तो अपना इस्लामी तेवर बना लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरात, बेदारी मुहिम के एक अहम इजलास में आप सबका खैर मकदम है। ये सुनहरी मौका है हमारे लिए
اور یہ غور و فکر کے لیے ہم سب یہاں اپنے مسائل کو، اپنی زندگی کو، اپنے حالات کو، بلکہ زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ اپنی مقدر کو بدلنے کے لیے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ جو آیت میں نے قرآن کریم سے پڑھی ہے، سب سے پہلے اس کا ترجمہ سن لیں۔ زمین و آسمان کی بناوٹ میں اور دنوں رات کے آنے جانے میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ وہ اور بیشتر جب ہم ایسی نورانی مجالس میں، ایسی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو ایک تصور لیے ہوئے ہم آتے ہیں کہ اپنے دلوں کو منور کریں گے، اللہ کی برکتیں ہم پہ نازل ہوں گی، فرشتے ہم پہ سایہ فگن ہوں گے، اور بہت ساری برکات سے ہم نوازے جائیں گے۔ یقیناً یہ ساری چیزیں ایک مومن کو مطلوب ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذرا اللہ کو مت کرنا۔ یہ بات ہم کو سمجھ میں آئیں گی۔ میں نے جو آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ غور و فکر کرنے والے اس بات پہ غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کام کو بے مقصد نہیں بنایا، کسی چیز کو، کوئی تخلیق اللہ کی ایسی نہیں جو بے مقصد ہو، اور اس مالک کائنات کا سب سے بہترین شاہکار انسان، اس کی بھی اصل پہچان یہ ہے کہ اس کا کوئی کام بے مقصد نہیں ہوتا۔ ہمارا یہاں پہ آنا، ہمارا یہاں پہ بیٹھنا ایک خاص مقصد کے تحت ہے۔ وہ مقصد کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو طوفان چہار جانب سے ہماری طرف آ رہا ہے اس کے لیے روک تھام کا ہم انتظام کریں گے۔ تفصیل کے لیے مختلف اور بڑے ہی جید عالم دین اور دانشوران موجود ہیں جو کہ انشاءاللہ تفصیل سے آپ کے سامنے باتیں آئیں گی، لیکن یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہماری جو کیفیت ہے، جہاں ہم رہتے ہیں، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک تو وہ حصہ ہے جس پہ حکومت مداخلت کر رہی ہے، مسلمانوں کی تصویر کو بگاڑ رہی ہے، اس کے قوانین کو تبدیل کرنا چاہتی ہے، اور اس کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک کیفیت تو یہ ہے۔ دوسری ایک اس کے جو دوسرے پہلوؤں سے ہم غور کریں گے اور محسوس کریں گے تو ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ آج دنیا کے اندر مسلمانوں کی جو ایک مجموعی تصویر بنی ہے، اس میں ہم مرد و خواتین کا بہت بڑا حصہ ہے۔ جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا، جو ترجمانی ہمیں کرنی چاہیے تھی، جو ذمہ داریاں ہم کو نبھانے چاہیے تھیں، اس سے ہم دور رہے، جس کے نتیجے میں یہ برے حالات ہم کو دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اور اگر ہم نے غور نہیں کیا، اگر ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی نہیں سوچا، اگر اس پہ سیریس نہیں ہوئے، سنجیدہ نہیں ہوئے، تو مزید نقصان ہو سکتا ہے۔ ملک کے حالات سامنے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال سے جو تمثیل کسی صاحب نے بیان کی ہے کہ کسی علاقے میں فٹ بال کا میچ ہو رہا تھا۔ ایک دیہات کا لڑکا
ادھر سے گزرا جس نے کبھی فٹ بال کے کھیل کو نہیں دیکھا تھا. ایک پہلی بار زندگی میں جب اس نے فٹ بال کے میچ کو دیکھا تو سمجھ نہیں سکا کہ کیا معاملہ ہے, کیا ہو رہا ہے. اس کو لگا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہر ایک اس کو اپنے پیروں سے مار رہا ہے. جدھر جو دیکھو پوری اتنے تک 20-22 افراد مل کر کے ایک ہی کوئی چیز ہے, گیند ہے جس کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور ہر طرف لاٹھی مارنے کی بات ہو رہی ہے. اس کو بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, کبھی زندگی میں فٹ بال دیکھا نہیں تھا. بازو میں اس سے لگا کہ میں ایک پورے یعنی ذہین آدمی ہے یا ہوشیار آدمی ہے, جو بھی اس نے محسوس کیا تو شرماتے شرماتے انہوں نے اپنے اس بازو والے سے پوچھا کہ آپ سے ایک سوال ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. اس نے آپ پوچھو. کہا کہ اس فٹ بال کا کیا قصور ہے, کیوں سب اس کو لات سے مار رہے ہیں. وہ آدمی سمجھدار تھا, وہ سمجھ گیا کہ لگتا ہے اس نے زندگی میں کبھی اس طرح کے اس کو نہیں دیکھا ہے, لیکن بات چونکہ سمجھانا ہے تو اس نے کہا کہ دیکھو بیٹا, قصور اس کا اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ یہ اندر سے خالی ہے. اس کے پیٹ کے اندر سوائے ہوا کے اور کچھ ہے نہیں. اگر اس کے اندر سختی ہوتی کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس کو لات مار لیتا. وہ کسی حد تک مراد یہ ہے آج جو ہم پیروں سے روتے جا رہے ہیں, آج جو ہم ٹھکرائے جا رہے ہیں, آج جو بد سے بدترین حالات کی طرف منتقل کیے جا رہے ہیں, تبدیل کیے جا رہے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ اسی فٹ بال کے مانند ہم کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں اور اس لائق ہم بنتے جا رہے ہیں کہ لوگ ٹھوکر ہی مارے. بات ہم کو سمجھ میں بھی آ جاتی ہے تو مسائل ہوتے ہیں. آدمی کہتا ہے کہ بات تو صحیح ہے, خواتین بھی کہتی ہیں, مرد بھی کہتے ہیں کہ ہاں بات تو درست ہے, لیکن ہمارے ذاتی مسائل ہیں. ابھی ذاتی بہت سارے کام ہیں, بے شمار انواع ہے کاموں کا, اس کو کر لیں بند کر لے بٹی ڈاؤن ہو جاتا تو ہم اس کام کو کریں گے, تب ہم اسلام پہ عمل کریں گے. اور بالخصوص ہمارے گھریلو زندگی کی جو کیفیت ہے اس کو بھی میں مثالوں سے ہی سمجھا رہا ہوں کہ ایک جوان کو ایک شخص بار بار متوجہ کرتا کہ جب تم نے زندگی کی حقیقت سمجھ لی ہے تو تمہیں اس پہ عمل پیرا ہو جانا چاہیے. لیکن وہ اپنے بے شمار عذر, بے شمار مجبوریاں پیش کرتا. ایک روز دیکھا کہ وہی جو اس کو بار بار سمجھاتا تھا ایک دریا کے کنارے کھڑا ہے اور بہت دیر سے کھڑا ہوا ہے. تو اس نوجوان نے کچھ بات نہیں بنے گی, جو بات تھی صلاح کی سودی میں نے بتا, آئندہ اپنے فعل کا ہے تم کو اختیار. جزاک اللہ خیرہ. آپ تھے